हेलो गाइस, दिस इज दीपक वंसल पंजाब आईक्यू ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਹਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੇਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੱਢਣੇ, ਜਿਵੇਂ PSPCL ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, सब इंस्पैक्टर ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन की है, देखो मैं की करने वाला, कुछ स्टूडेंट ने मैंने रिक्वेस्ट करी थी भी ਜਿਹੜੇ ਵੀ क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਉਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਦੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ 25% ਆਫ ਦੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ 25% ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 25% ਆਪਣੇ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਦਾ। ਦੈਨ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਦੱਸਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ CP ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 25% ਆਫ SB। ठीक है, SP ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, SP ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ CP ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ SP इज इक्वल टू 25%। देखो हर परसेंटेज ਨੂੰ किस तरीके ਨਾਲ फ्रैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 33.33% ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾ ਕੇ 100 ਲਾਤਾ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ 100 ਲਗਾਤਾ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ 1/3 ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ 1/3 ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ 11.11% ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ 1/9 ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 25% ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 1/4 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ CP अपॉन SP इज इक्वल टू 1/4। 1/4 ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀ ਕਰਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੇਚਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, SP ਮਾਈਨਸ CP अपॉन CP गुणा 100। ठीक है, SP माइनस CP डिवाइड करता ਆਪਾਂ CP गुणा 100, ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਤੀ ਤਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਭ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, तो 3 रुपए का फायदा हो गया, तो 3 रुपए का मैं फायदा उरे लिखता था। किन्ने रुपए की चीज लेके आए थे, CP की वैल्यू कितनी अपनी 1 है, तो 1 उरे आप पुट कर देंगे, तो गुणा 100, तो 3 ਨੂੰ ਜੇ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, 300% ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ 300% ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜ਼ੀ PDF ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ 99 ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸਪੇਸ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ 99 ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ PDF ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ 99 ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ PDF ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਜੇ YouTube ਦੇ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, YouTube ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ 99 ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ 99, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। देखो इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, देखो उरे भी कोस्ट प्राइस है, उरे भी कोस्ट प्राइस, उरे भी कोस्ट प्राइस है, उरे भी कोस्ट प्राइस है, कोस्ट सारे किते कोस्ट प्राइस है, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन है बहुत ईजी हो जाता है। किमें ਕੱਢਾਂਗੇ, देखो ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸਟ ਆਫ 3 क्रिकेट बाल। ठीक है, 3 क्रिकेट बाल ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਹ 2 पेयर ऑफ लैग पैड के बराबर है। लैग पैड, ठीक है, लैग पैड में आप LP लिख देंगे, लैग पैड के बराबर आ। तो हूँ आप कर सकते हैं CB अपॉन लैग पैड जो इधर मल्टीप्लाई च इधर डिवाइड च आ गया तो ये 2/3 आ गया। ठीक है, एक तो मेरे को बन गई फ्रैक्शन, अपने को फ्रैक्शन बन गई, रेशो बन गई। तो दूजा की करांगे आप कहांगे कि 3 लैग पैड जोड़े ने वो किहदे बराबर ने, 2 ग्लव के बराबर ने। तो लैग पैड डिवाइड च ग्लव कितनी रेशो आ गई अपने को, इतने आ गई 2/3 आ गई।
एक अपने को रेशो आ बन गई। तीजा की कहते ने, कहते कहते 3 गलव जेडे ने वो किहदे बराबर ने, 2 क्रिकेट बैट। इनू मैं बैट लिखूंगा क्योंकि सी भी आप पहले उरे ले चुके हैं क्रिकेट बॉल वास्ते, हूँ क्रिकेट बैट है तो मैं उरे BT लिखता, ठीक है। तो आप लिख सकते G अपॉन क्रिकेट बैट इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। हूँ अपने को 3 की बन गया, रेशो बन गया। देखो उरे तुम देखोगे बाल की वैल्यू 2 है, उरे LP की वैल्यू कितनी 3 है, पर उरे LP की वैल्यू 2 है, ठीक है। अलग अलग तो होनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। उरे G की वैल्यू 3 है, उरे G की वैल्यू 2 है। तो आप इन्हें सोल्व करने तो पहले की करना पऊगा, आपको ਜਿਹੜੀਆਂ भी ये फ्रैक्शन ने, जी भी रेशो है उन्होंने की करना पऊगा, बराबर करना पऊगा। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ बराबर करते हैं। देखो CB क्रिकेट बॉल रेशो LP की, LP की लेग पैड है, रेशो G की अपना ग्लव्स है, रेशो क्रिकेट बैट, ठीक है। इन्हों की रेशो आप की कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। देखो CB ते LP की रेशो की है 2/3 है, तो लिख लेंगे 2/3, ठीक है। LP ते G की रेशो की है 2/3, इतने की LP के नीचे LP लिख लेंगे, G की वैल्यू की है 3 के नीचे 3 लिखेंगे। G ते C बैट के की है 2 ते 3, G की वैल्यू 2 है तो यदी रेशो की है 3 है। हूँ आप की करना, देखो ये 3 के नाल आ जगह खाली पई है, उरे 3 भर दें क्योंकि 3 सी उरे वैल्यू, उरे 3 के नाल जगह खाली पई है तो 3 भर दें, उरे 3 के नाल जगह खाली पई है तो 3 भर दें, उरे 2 के नाल जगह खाली पई है तो उरे 2 भर दें, ठीक है। उरे 2 के नाल जगह खाली पई है 2 भर दें, उरे 2 के नाल जगह खाली पई है 2 भर दें। यह तरीका होंगे अपनी जी रेशो है उसको बराबर करने के वास्ते, ठीक है। तो हूँ आप बस मल्टीप्लाई करनी है, कि मैं 2 आ जी चीज वैल्यूज ने इसको मल्टीप्लाई करदा तो मेरे को कितना आ जाऊगा, 8 आ जाऊगा, ठीक है। जे मैं इनू मल्टीप्लाई करदा तो कितना आ जाऊगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 12 आ जाऊगा अपने को। रेशो 9 9 दूनी कितना आ जाऊगा, 18 आ जाऊगा, तो 9 9 27 आ जाऊगा, तो अपनी रेशो बन गई। हूँ इन्होंने की किया, कहते क्रिकेट बैट की जी कोस्ट है 54 रुपये, ठीक है। क्रिकेट बैट इन्होंने थी आदि क्रिकेट बैट जी लास्ट वाली थी, मतलब यही वैल्यू कितनी 54 है, पर उन्हें तो 27 है, तो 54 बनाने वास्ते अपन 2 ना गुना कर देंगे तो अपने को कितनी आ जाएगी, 54 आ जाऊगी। इन्होंने पूछा कहते कोस्ट दसो क्रिकेट बॉल की, क्रिकेट बॉल इन्होंने चो कि क्रिकेट बॉल अपनी पहली थी जी वैल्यू कितनी 8 है। जे आप इसनों 2 नाल मल्टीप्लाई करके 54 लियाता दी, तो इसनों भी आप 2 नाल मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू लियावांगे जो कि अज भी 16, तो 16 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस कुछ नहीं थी, इस चीज़ आप दती हुई सी, तो बस अपना जो मेन काम उरे यह थी कि आप जी इन्हों की फ्रैक्शन है, ठीक है, जी इन्हों की रेशो है वो बराबर करिए, ठीक है। कुछ नहीं कराया, बस जी इन्हों की रेशो है वो बराबर करिए, तो उस तो बाद जी वैल्यू दी थी उसमें कंपेयर करके आप दूजी वैल्यू कढ़ी है, ठीक है। इस करके अपना कितना आंसर आ गया, 16 अपना सही आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन के बाद कहते ए परसन इनक्यो ए लॉस ऑफ 5% बी सेलिंग ए वॉच फॉर रुपीज 1140, ठीक है। वो कहते भी एक परसन की हानि होंगी है, लॉस होंगे, ठीक है। एक बंदे नूं हानि होंगी है, लॉस होंगे कितना 5% का, जे वो आपकी घड़ी नूं किन्ने दी बेचदा 1140 रुपए की बेचदा, ठीक है। कहते वट प्राइस शुड द वॉच भी सोल्ड, कहते उसनूं अपनी घड़ी नूं किन्ने दी बेचना चाहिए कि उसनूं 5% का की हो जाए प्रॉफिट हो जाए। देखो 5% का की हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 5% के लॉस में आप की लिख सकते, मैंने पता 5% जी है उसमें जो मैं फ्रैक्शन चेंज करता मेरे को जो है 1/b आ जाऊगा। यदा मतलब की होंगे जे B है मेरे को, ठीक है, CP मेरे को B है तो 1 रुपये का की हो रहा है लॉस हो रहा है। CP जे मेरे को B है, CP मेरे को कोस्ट प्राइस, ठीक है, खरीद मूल्य जे मेरे को B है तो 1 का की हो रहा है मेरे को लॉस हो रहा है, ठीक है। तो बेची तो कितनी दी होगी, जो 20 की चीज़ खरीदी 1 रुपये का मैं घाटा खाया तो मैं 19 रुपये की बेची, 19 रुपये की बेची, मतलब खरीदी मैंने 20 रुपये की, बेचती मैंने सेलिंग प्राइस कितना आ गया मेरा 19 आ गया, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। उस तो बाद ये कहते वट प्राइस शुड द वॉच भी सोल्ड एट अर्न 5% प्रॉफिट। हूँ की कहते 5% का की हो जाए मैंने प्रॉफिट हो जाए, 5% का मैंने प्रॉफिट हो जाए, 5% रेशो फिर 1/20 आऊगा, ठीक है। जब आप फ्रैक्शन चेंज करते हैं 1/20 फिर आऊगा, पर इस बार क्या 1 रुपये का की हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 20 रुपये की चीज़ लेके आया, 1 रुपये का उसको लाभ होया, तो उसने किन्नी दी बेची, 21 रुपये की बेची, ठीक है। 20 रुपये की उसने खरीदी तो 21 रुपये की बेची, 21 रुपये की बेची। देखो इतने CP की वैल्यू 20 है, इतने CP की वैल्यू 20 है, मतलब रेशो अपनी बराबर है। कहते जब उसने पहली बार जब घाटा खादा थी तो उसने 1140 रुपये की बेची थी, तो उरे 19 है, ठीक है, 19 है,
ਇੱਥੇ 19 पर उसने किन्ने दी किया, उसने क्या 1140 रुपए की बेची है, तो 19 ਨੂੰ ਆਪਾਂ किस वैल्यू ਨਾਲ मल्टीप्लाई करिए कि अपने को 1140 आ जाए। ठीक है, तो इस मल्टीप्लाई करांगे 19 छीका कितना ਹੁੰਦਾ अपना 114 ਹੁੰਦਾ, 19 छीका कितना ਹੁੰਦਾ 114 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 60 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, 19 ਨੂੰ ਜੇ 60 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1140 ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਉਰੇ 60 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਉਹ ਵੇਚੇ कि उसਨੂੰ 5% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੇਚੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਉਸਨੇ 21 रुपए की, तो इस भी आप 21 भी की करेंगे 60 ਨਾਲ गुणा कर देंगे, तो 21 में जब आप 60 ਨਾਲ गुणा करांगे तो अपने को कितना आएगा 6 12। ठीक है, 1260 अपना आंसर आ जाएगा, तो 1260 अपना आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करा। ठीक है, इसनू जी रेशो थी इसनू फ्रैक्शन के चेंज करके आप जी वैल्यू आपको दिती हुई थी कि सैलिंग प्राइस की वैल्यू दिती हुई थी, सैलिंग प्राइस नू ठीक है 1140 बनाने वास्ते आप किन्ने नाल मल्टीप्लाई करेंगे 60 नाल करांगे, तो उरे 21 की वैल्यू कढ़नी है, तो इन्हें भी 60 नाल मल्टीप्लाई करके अपने को 1260 आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी तरीके नाल आपने कढ़िया। हुण आपां अगे वधदे हां। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते Tarun got 30% concession on the labeled price of an article and sold it for rupees 8,750 with 25% profit on the price he bought. What was the labeled price? देखो तरुण ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 30% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ठीक है, कंसेशन मिलता है 30% का डिस्काउंट मिलता है ऑन दी लेवल प्राइस। ठीक है, जो लेवल प्राइस थी जो मार्केट प्राइस थी उससे उसमें 30% का की मिलता है डिस्काउंट मिलता है तरुण ਨੂੰ। ठीक है, तरुण अगे की करता उसनू खरीद के उसनू बेच दिंदा 8,750 रुपए की, तो उसनू 25% का की हुंदा लाभ हुंदा, 25% का प्रॉफिट हुंदा। ठीक है, जिन्ने दी वो चीज़ उसने खरीदी सीपी तो उसनू 25% का कितना प्रॉफिट हुंदा। आपां दसना कि लेवल प्राइस कितना थी, मार्केट प्राइस कितना थी जब वो खरीदन गया। सब तो पहले देखो 30% गया, 30% का डिस्काउंट मिलता है, इसका मतलब 30% जो फ्रैक्शन चेंज कर दिया तो अपने को 3/10 आता है। तो इसका मतलब की है कि 3 रुपए का उसमें मिलया होगा डिस्काउंट, तो 10 रुपए की होगा लेवल प्राइस या मार्केट प्राइस होगा। ठीक है, जो 3 रुपए का उसमें डिस्काउंट मिले तो उसने असल दे विच उस चीज़ को किन्ने रुपए का खरीदया। ठीक है, क्योंकि उसने अगे खरीद के उसमें बेचा है, तो असल दे विच 10 की चीज़ से उसमें 3 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो 7 रुपए की उसने चीज़ खरीदी, तो 7 की आजू अपना कोस्ट प्राइस आ जाऊगा। किस वास्ते कोस्ट प्राइस आ जाऊगा अपना, यह तरुण वास्ते आ जाऊगा, क्योंकि तरुण ने अगे चीज़ खरीद के बेची है, तो तरुण वास्ते की होगा कोस्ट प्राइस होगा, तो 10 की हो जाऊगा अपना लेवल प्राइस होगा। ठीक है, अपना लेवल प्राइस हो जाऊगा। तो उस तो बाद उसने जब चीज़ खरीदी तो उसने अगे बेच के उसमें 25% का प्रॉफिट कमा लिया, तो 25% का प्रॉफिट मतलब आप कह सकते 1/4। जे उसने 4 रुपए की चीज़ खरीदी थी तो 1 रुपए की उसने की करती, मतलब 1 रुपए का उसने प्रॉफिट कमा लिया। 4 रुपए की खरीद के 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो 4 रुपए की खरीद के किन्ने की बेची होगी 5 रुपए की बेची, क्योंकि 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो 5 की अपना सेलिंग प्राइस है, 4 किन्ना अपना कोस्ट प्राइस है। ठीक है, ये गल आप याद रखनी है। हुण देखो की करना होंगे रेशो जी होंगी बराबर करनी होंगी, उरे कोस्ट प्राइस कितना आ रहा अपना 7 आ रहा, उरे कोस्ट प्राइस कितना आ रहा अपना 4 आ रहा है। तो ऊपर की करेंगे आप 4 नाल मल्टीप्लाई तो डिवाइड कर देंगे, तो नीचे की करेंगे आप 7 नाल मल्टीप्लाई तो 7 नाल डिवाइड कर देंगे। हुण अपने को कोस्ट प्राइस तो लेवल प्राइस की जी रेशो कितनी बन गई 7 चौका 28 तो 40, उरे कितनी बन गई 7 5 35 तो 7 चौका 28। हुण जे कोस्ट प्राइस देखिए कितना 28 है, उरे कोस्ट प्राइस देखिए कितना 28 है। हुण अपनी जी कोस्ट प्राइस की वैल्यू थी वो बराबर होगी। हुण क्वेश्चन ध्यान आने कि उसने जी चीज़ थी वो किन्ने की बेची 8,750 रुपए की बेची। ठीक है, तरुण गोट 30% का उसने की किया डिस्काउंट लिता, उन्हें लेवल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 8,750 के उसने खरीदने तो बाद किन्ने की बेची 8,750 रुपए की बेची। ठीक है, तो उरे अपने को की है सेलिंग प्राइस कितना आ रहा 35 आ रहा, तो 35 नहीं आना चाहिए, आना चाहिए अपना 8,750। तो आप 35 किस वैल्यू ना मल्टीप्लाई कर दिए कि अपना 8,750 आ जाए, तो 35 आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 नाल, क्योंकि 35 गुणा 25 कितना होंगे अपना 8,750 होंगे। ठीक है, तो 35 25 अपना गुणा करके अपने को वैल्यू कितनी आ गई 8,750 आ गई। हुण इन्होंने कढ़ना की थी, कढ़ना थी आप लेवल प्राइस, जो लेवल प्राइस मार्केट प्राइस की थी, लेवल प्राइस कितना अपना लेवल प्राइस अपना 40 है, तो 40 की वैल्यू आप जो कन्वर्ट करनी है वैल्यू के विच, तो जो उरे 25 ने गुणा किया तो इन्हें भी आप करेंगे 25 ना गुणा कर देंगे, तो 25 चौका कितना होंगे 100। ठीक है, 1 0 होर थी, तो अपने को कितना गया 1000 सॉरी 25 जो आप मल्टीप्लाई करते हैं 25 चौका कितना होंगे अपना 100, तो 100 तो बाद एक वैल्यू तो अपना 10,000 की वैल्यू आ रही है। सॉरी इतने आप 25 नाल नहीं गुणा करेंगे, 35 जो मैं 35 आप 250 गुणा करेंगे। ठीक है, तो उरे भी आप 250 गुणा करेंगे, 1 0 अपनी होर आ जाएगी, तो अपना कितना आंसर आ जाएगा 10,000। ठीक है,
क्योंकि जे आप 35 ਨੂੰ 25 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ 5 25 15 17 70 5 7 8 ठीक है 875 ਹੁੰਦਾ पर ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣਾ 8750 ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 250 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ठीक है ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ओके कहते ए शॉपकीपर सैल 2 आर्टिकल एट ₹1000 ईच ठीक है एक शॉपकीपर है एक दुकानदार है वो आपके 2 आर्टिकल बेचता है दोने आर्टिकल वो किन्ने रुपए दे बेचदा 1000 रुपए दे पहला आर्टिकल भी 1000 का बेचदा दूजा आर्टिकल भी 1000 बेचदा एंड मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द फर्स्ट आर्टिकल एंड लॉस ऑफ 20% ऑन द सेकंड आर्टिकल ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 20% ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਵੇਚਿਆ ਉਸ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 20% ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲਾਸ that he make ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 20% ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 4 ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ 2 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਣੇ ਜੀ ਹਾਂ पहली भी 1000 की बेची है दूजी चीज़ भी 1000 की बेची है तो सैलिंग प्राइस दोनों का बराबर है कि दोनों का जो प्रॉफिट है जो दोनों का प्रॉफिट परसेंटेज है तो लॉस परसेंट है कि वह बराबर है बिल्कुल जी 20% का उसनों की होया प्रॉफिट होया 20% का उसनों लाभ होया ठीक है ये दो चीज़ां जो थोड़ियां बराबर आंदियां ने तो तुसीं की कर सकते हो नैट प्रॉफिट ते लॉस कड्ढण दा फार्मूला हुंदा ठीक है नैट लॉस कह लो लॉस परसेंट या फिर प्रॉफिट सॉरी इस दे विच हमेशा लॉस ही हुंदा ठीक है इस दे विच हमेशा की होगा लॉस ही होगा ठीक है एक गल याद रख लियो जे तुसीं की कहना उहदे लॉस ही आऊगा ठीक है जे तुहानूं इस दे विच एवें दित्ता होया भी मान लो उहदे 4% का लॉस है तो 4% का प्रॉफिट है तो तुसीं मान लो 4% उहदे प्रॉफिट हुंदा तो तुसीं 4% लॉस ते ही लगा के आंदे ठीक है इस दे विच हमेशा की होगा लॉस होगा जे दो कंडीशनां तुहाडियां सैटिस्फाइड करदियां ने तो तुसीं की फार्मूला लगाना है लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू x² / 100 ठीक है एक्स की अपना एक्स अपना की है 20% जिन्ने का आप की कर रहे प्रॉफिट या लाभ मतलब प्रॉफिट हो रहा है या हानि हो रही है ठीक है तो 20 दी स्केयर डिवाइड बाय 100 ठीक है 20 दी स्केयर करेंगे तो कितना 400 400 डिवाइड बाय 100 तो 0 ना 0 कट के भी 4 अपना आंसर आ जाएगा मतलब 4% का की होगा लॉस होगा 4% का अपन लॉस होगा तो 4% अपना आंसर आ जाएगा बस आ फार्मूला याद रखना है ये फार्मूला याद रखना है ये फार्मूला उदों ही यूज करना है जब सैलिंग प्राइस की ने बराबर ने ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੌਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 20% ਦਾ 4 ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 20% ਦਾ 4 ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਕਹਿੰਦੇ what profit percent is made by selling an article at a certain price if by selling 2/3 of that price there would be a loss of 20% ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ what profit percent is made by selling an article at a certain price ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚਦਾ if by selling at 2/3 of that price ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 2/3 ਵੇਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 2/3 ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 20% ਦਾ ठीक है उसमें की होंगे लॉस होंगे 20% का आप दसना है कि पहला उसमें किन्ने का प्रॉफिट हो रहा थी दोबारा दसदा पहला उसने किसी रेट से उसमें बेचिया तो उसमें की हो गया प्रॉफिट हो गया फिर उसने की किया जिहड़ी चीज़ से पहला बेच रहा थी उसका की करता 2/3 करता तो फिर उसमें की हो गया 20% का लॉस हो गया आप हुण ऐ दसना कि जिहड़ा ये प्रॉफिट होया सी ये किन्ने परसेंट का होया सीगा देखो इसनूं करन दा तरीका की है कि जिहड़ा दूजी बार वो बेच रहा है जिस ते उसनूं हानि हो रही है वो की है सेलिंग प्राइस की है वो 2/3 है 2/3 है की सेलिंग प्राइस 1 का जिन्ना पहला वो बेच रहा थी तो सेलिंग प्राइस 2 ते सेलिंग प्राइस 1 इज इक्वल टू 2/3 आ गया ठीक है 2/3 अपनी रेशो होगी तो हुण की कर रहा है कि उसमें लॉस हो रहा है 20% का तो लॉस आप 20% का की कह सकते हैं लॉस इज इक्वल टू 20% में आप की लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं 1/5 ठीक है 1/5 लिख सकते हैं ठीक है लॉस हो रहा है 1/5 का एक कद लॉस हो रहा है जब वो अगली बार मतलब जब वो सैकेंड टाइम बेच रहा है मतलब इस टाइम जब वो बेच रहा है तो उसमें लॉस हो रहा है तो इसका मतलब की है कि वो CPJ अपना 5 है तो सैलिंग प्राइस जो अपना की है 2 सैकेंड जो अपना लॉस है वो 2 है पर उरे SP2 कितना आ रहा है 1 आ रहा है उस उरे SP2 कितना आ रहा है अपना 2 आ रहा है तो इसमें आप की करेंगे 2 ਨਾਲ गुणा करेंगे बराबर करने वास्ते जब अपन 2 ਨਾਲ गुणा करेंगे तो अपने को कितना आ जाऊगा
सॉरी उरे 4 आऊगा, ठीक है। 1 रुपए का उसमें लॉस हो रहा है, तो 1 रुपए का लॉस हो रहा है, तो 5 की चीज खरीदी 1 का लॉस हो रहा है, तो 4 रुपए की होगी एसपी आ जाऊगा। तो उरे कितना है एसपी 4 आ रहा है, उरे एसपी कितना आ रहा है अपना 2 आ रहा है, तो इसनू भी आप 4 बनाने वास्ते उरे 2 ਨਾਲ गुणा कर देंगे, तो कितना होगा 4/6। हुण सेलिंग प्राइस जो 2 है उरे 4 है, उरे सेलिंग प्राइस 2 कितना उरे 4 है, हुण अपना बराबर हो गया, ठीक है। हुण अपना बराबर हो गया, तो हुण आप जो उरे 4 आ रहा है, हुण आप की दसना सी, आप दसना कि वो किन्ने रुपए का बेचे, कि उसनू पहला प्रॉफिट होया सी किन्ने रुपए का बेचे। तो सेलिंग प्राइस उन्हें कितना दिया 6 थीगा, तो कॉस्ट प्राइस तो आपको पता सेम है, दोनों च 5 है, तो 1 रुपए है, 1 डिवाइड बाय 5 गुणा 100, ठीक है। नीचे की आ गया अपना सेलिंग प्राइस, ऊपर की आ जाऊगा अपना प्रॉफिट आ जाऊगा, एक नीचे कितना गया 100, तो 1/5 आप लिख सकते 20%, 20% अपना आंसर आ जाऊगा, ठीक है। दोबारा दसदा कि उसने पहला मतलब पहला जब बेची, ठीक है, तो किन्ने दी बेची 2/3 बेची, जी आप SP1 थी, ठीक है, जी उसने सब तो पहला बेची थी, उस तो बाद जी बेची उसकी जी रेशो कितनी है 2/3 है सेलिंग प्राइस पहले दे। इस आप करती रेशो कटती, तो आप की करिए पहले च अपना लॉस होया 1 किन्ने का होया 1/5 का होया, 5 की चीज़ का 5 का लॉस होया, 1 रुपए का लॉस है, 5 रुपए की है उसने खरीदी थी, तो उसने किन्ने की बेची होगी 4 रुपए की बेची होगी सेकंड टाइम, ठीक है। इतने सेकंड टाइम जी बेची वो 4 है, तो इतने जी सेकंड टाइम बेची वो 2 थी, तो इन्होंने बराबर करने वास्ते 2 ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता, तो 4/6 आ गया, ठीक है। जो उरे 4 ते 6 आ गया, हूँ आपको की पता लगा कॉस्ट प्राइस पता लगी जी की 5, ठीक है। हूँ आप पहले टाइम जिन्ना उसने प्रॉफिट कमाया थी वो दस सकते हैं, तो 5 रुपए का उसने कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 6 है, तो 1 रुपए का उसने की किया प्रॉफिट किया, किन्ने ते किया सेलिंग प्राइस से सीपी कितना 5 गुणा 100 20% आ गया, ठीक है। इस तरीके अपन से कर दो, थोड़ा कंफ्यूजिंग ता बन गया क्योंकि सेलिंग प्राइस 1 सेलिंग प्राइस 2 थी, ठीक है, ता करके थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया थी, अदरवाइज ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थी अपना। आगे बढ़ते हैं, ओके। कहते एक आदमी ने बाय ऑरेंज एट ₹5 अ दर्जन, ठीक है, 1 दर्जन खरीदा हो किन्ने रुपए दे 5 रुपए दे, 1 दर्जन किन्ने दे खरीदा हो 5 रुपए दे, एंड इक्वल नंबर एट ₹4 अ दर्जन, तो 1 दर्जन मान लो उसने खरीद किन्ने दे खरीदे 4 रुपए दे, ठीक है। उसने कुछ दर्जन खरीदे 5 रुपए दर्जन के हिसाब नाल, कुछ उसने ऑरेंज खरीदे अपने संतरे खरीदे 4 रुपए दर्जन के हिसाब नाल, ठीक है। आपको पता किन्ने दर्जन खरीदे, पर कुछ 5 रुपए दर्जन के हिसाब नाल, कुछ 4 रुपए दर्जन के हिसाब नाल, ते उसने की किया उसनू सैल करता किन्ने रुपए, उसनू सैल करता 1 दर्जन नू 5.5 दर्जन के हिसाब नाल, मतलब 5.5 रुपए के हिसाब नाल, ठीक है। तो मतलब उसने 2 दर्जन खरीदे थी किन्ने रुपए दे 9 रुपए दे खरीदे थी, 2 दर्जन किन्ने दे खरीदे थी 9 रुपए दे खरीदे थी। जे 1 दर्जन वो 5.5 रुपए दे बेचदा है, तो 2 दर्जन वो किन्ने दे बेचूगा 11 रुपए दे, ठीक है। 2 दर्जन किन्ने दे बेचूगा, ये आ गया अपना कॉस्ट प्राइस, ये आ गया अपना सेलिंग प्राइस। ये 2 दर्जन उसने 9 रुपए दे खरीदी थी, तो 2 दर्जन उसने 11 रुपए दे बेचते, तो किन्ने रुपए का उसनू किन्ने रुपए का लाभ हो गया 2 रुपए का लाभ हो गया, ठीक है। तो कहते जो उसनू 50 रुपए का प्रॉफिट करना है, जे 50 रुपए का प्रॉफिट करना है, तो वो किन्ने दर्जन ऑरेंज खरीद बेचे, ठीक है। 2 दर्जन जे 2 दर्जन बेचे तो उसनू 2 रुपए का फायदा हो गया, 2 दर्जन बेचे तो 2 रुपए का, जे 50 रुपए का फायदा करना है तो किन्ने बेचने पैणगे 50 दर्जन बेचने पैणगे। बहुत ईजी क्वेश्चन थी, तो 50 दर्जन अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, 50 दर्जन अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, ओके। ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 20% इन प्राइस ऑफ ऑरेंज एक कस्टमर कैन परचेज 4 ऑरेंज मोर फॉर ₹16, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन ऑरेंज, ठीक है। इस की कह रहा है, कहते ऑरेंज का जो प्राइस हो 25% घट गया, सस्ते हो गए, 25% सस्ते हो गए। जब कोई चीज़ सस्ती हो जाती है आप करते हैं उन्ने ही ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है। 25% जो सस्ती हुई है तो 25% उसने ज़्यादा खरीद लिया उन्ने ही रुपए का, ठीक है। किन्ने रुपए का 16 रुपए का, ठीक है। 16 रुपए का उसने ज्यादा खरीद लिया, 4 ऑरेंज ज्यादा खरीद लिए, 4 ऑरेंज ज्यादा खरीद ले, 25% रेट घट अनुसार उसने 4 ऑरेंज ज्यादा खरीद ले। आप दसना कि पहला ओरिजिनल प्राइस कितना सी ऑरेंज का, ठीक है, ठीक है। 25% की हो गया प्राइस घट गया, मतलब 25% में आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। तो पहला जो प्राइस 4 रुपए थी, पहला जो प्राइस जो थी वो 4 रुपए थी, तो 1 रुपए घट गया, तो हुण जो न्यू प्राइस है वो कितना है 3 रुपए है। प्राइस की जी रेशो है वो अपोजिट होती है, ठीक है, इनवर्सली प्रपोर्शन होती है अपने परचेज के, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 25% हूँ ज्यादा खरीदूगा, ठीक है। 4 अपना फिर 3 आ जाऊगा, मतलब पहला कितना खरीदा सी, पहला वो कितना परचेज करता सी 3 करता सी, हुण कितना परचेज करूगा, न्यू परचेज कितनी आ गई उसकी 4 आ गई, ठीक है। न्यू परचेज कितनी आ गई
4 आ गई क्योंकि हुण वो ज़्यादा परचेज करूगा। ये कहते कि उसने 4 ऑरेंज ज़्यादा परचेज करे ने, पर उन्हें रेशियो के विच किन्ने ज़्यादा परचेज करे, 1 ऑरेंज ज़्यादा परचेज किया है, ठीक है। तो उन्होंने की करना 4 किया, तेन 4 नाल गुणा करिए तां ही 4 आया। तो आप की करांगे हुण, आप की करांगे इसनूं भी 4 नाल कर लांगे गुणा 12, ठीक है। 12 पहला परचेज करता सी, ठीक है। हुण नवें किन्ने परचेज करूगा 16 परचेज करूगा क्योंकि इसनूं 4 नाल गुणा करेंगे 16 आ जाऊगा, ठीक है। पहला 12 परचेज करता सी, हुण नवें किन्ने करदा 16 करदा, किन्ने दा फर्क पै गया 4 का फर्क पै गया, ठीक है। तो उस तो बाद हुण की करदा 12 परचेज करदा है, ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ है ओरिजिनल प्राइस दसना है, अपना ओरिजिनल प्राइस दसना है, ठीक है। तो हुण अपना जो ओरिजिनल प्राइस दसना है, अपना ओरिजिनल प्राइस कितना 12, ठीक है। 12 पहले 12 परचेज करता सी, 16 रुपए के 12 परचेज करता सी, किन्ने रुपए के 16 रुपए के, 16 रुपए के किन्ने परचेज करता सी 12, आप एक की कीमत दसनी है। टोटल 16 रुपए की नंबर ऑफ ऑरेंज किन्ने दी पहला 12 थी, ये 16 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਚੌਕਮ ਚੌਕੀ 16 4 ਤੇ 12, 4/3 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰਦੇ ਆ 1.33 ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 20 ਆ ਜਾਊਗਾ, ठीक है। कुछ नहीं करा आप न्यू परचेज जी अपनी जिन्होंने किया भी उसने 25% जो प्राइस है, ठीक है, घट गया 25% जो रेट है वो जो घट गया तो 25% वो ज़्यादा खरीदूगा। रेशो जी पुट्ठी हो जूगी, मतलब पहला जी न्यू प्राइस 3 थी, हुण जो परचेज पहला वाली परचेज थी ओल्ड परचेज थी वो 3 है, पहला हुण जो पुराना प्राइस थी 4 है, हुण जी नवी परचेज है वो 4 है, ठीक है। उल्टी होगी, ठीक है। उसने कहा भी 4 वध खरीद ले, इतने किन्ने 1 वध खरीदा, मतलब 4 गुणा किया तो 4 ते 12 परचेज करता थी पहला, हुण नवी परचेज कितनी आ गई 16 आ गई, मतलब पहला 12 ऑरेंज खरीदा थी, 16 ऑरेंज खरीदा, 4 ऑरेंज वध खरीदा। पहला किन्ने खरीदा थी, पहला किन्ने खरीदा थी वो, पहला किन्ने खरीदा थी वो 12 खरीदा थी, ठीक है। 16 रुपए दे 16 रुपए च 12 खरीदा तो 1 रुपए च किन्ने खरीदूगा, मतलब 1 ऑरेंज किन्ने का खरीदूगा 1.33 रुपए का खरीदूगा, ठीक है। ये अपना आंसर है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ओके, कहते ऑन सेलिंग 12 balls at ₹720 there is a loss equal to the cost price of 5 balls, the cost price of a ball is, कहते selling 17 बाल वो की करता 17 बाल्स ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ, 17 ਬਾल्स ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੇਚਦਾ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਈਨਸ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਲੋਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲੋਸ, ठीक है। जे मैं सैलिंग कोस्ट प्राइस के विचों जे मैं सैलिंग प्राइस लोस माइनस करता तो अपने को सैलिंग प्राइस आ जाऊगा, ठीक है। हुण आप यही चीज़ करांगे, जी सैलिंग प्राइस है वो की है 17 सैलिंग प्राइस है वो किन्ने दी है, जो 17 उस खरीद के लिया जो 17 बेचे ने तो किन्ने खरीद के लिया होगा, 17 ही खरीद के लिया होगा, तो 17 का कोस्ट प्राइस माइनस जो उसनों लोस होंगे कि बराबर है 5 बाल के कोस्ट प्राइस है, 5 बाल के कोस्ट प्राइस के बराबर होगा, ठीक है। 5 बाल के कोस्ट प्राइस होगा, ये चीज़ याद रखनी है। देखो जो 17 उसने बेचे ने तो 17 ही वो खरीद के लिया होगा, जो 17 बेचे ने तो 17 ही खरीदे होंगे, तो इतने की ना भी किन्ने का लोस होया, लोस कितना होया उसनों 5 बाल के कोस्ट प्राइस के बराबर है, तो 5 बाल के कोस्ट प्राइस के बराबर आप कर देंगे। तो 17 बाल का जो सैलिंग प्राइस है, तो 17 बाल के सैलिंग कोस्ट प्राइस के 5 बाल का कोस्ट प्राइस माइनस कर दें तो कितना जो 12 बाल का कोस्ट प्राइस आ जाऊगा। तो सैलिंग प्राइस तो कोस्ट प्राइस की जी रेशियो कितनी आ जाएगी अपने 12/17 आ जाएगी, ठीक है। जो वो 17 रुपए की कोई चीज़ खरीदी थी तो उसने 12 रुपए की बेचती, जो 17 रुपए की खरीदी थी तो 12 रुपए की बेचती, ये की कहते कि 17 जी अपनी खरीद बेच मूल्य वो कितना 720 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 720 है, तो कितना मल्टीप्लाई किया होगा आप 12 6 72 होंगे तो इसमें 60 गुणा किया, तो 12 60 गुणा करेंगे 720 आ जाएगा, तो 17 भी आप 60 गुणा करेंगे कितना आजूगा अपने को 17 60 गुणा करेंगे तो अपने को कितना आजूगा, ये आजूगा अपने को 10 20, ठीक है। 1020 आ जाऊगा जब आप 17 छिका कितना 102 होंगे, ठीक है। तो उस बाद 0 लग जूगी तो अपने को 10 भी आ जाऊगा। हूँ इन्हें पूछा कि कोस्ट प्राइस ऑफ ए बाल एक बाल का आप कोस्ट प्राइस दसना, ठीक है। एक बाल का कोस्ट प्राइस वैसे आई भी आ जाएगा, तो एक बाल का 60 थी, 17 बाल का 17 गुना 60 थी तो 1020 आ गया थी, तो एक बाल का कितना 60 है, तो 60 अपना आंसर आ जाएगी। इस तो इन्ना सोल्व करने की लड़ नहीं थी, आप पूरी पता चल रहा था भी एक बाल का 60 है तो 12 बाल का कितना आ गया 720 आ गया थी, तो एक बाल का 60 आ गया थी, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बढ़ते हैं। कहते इन ए स्कीम ए पैक ऑफ 3 सोप विद MRP ₹45 इज अवेलेबल फॉर 42। कहते एक स्कीम है जिसे 3 सोप का एक पैक है, ठीक है, जिसका MRP 45 रुपए दिया, उसनों किन्ने की मिल गई 42 रुपए की मिल गई, ठीक है। 42 रुपए की मिल गई। इफ इट स्टिल गिव ए प्रॉफिट ऑफ 5% टू द शॉपकीपर, जे उसने 45 की चीज़ 42 की बेचने तो बाद भी उसनों 5% का की हो गया प्रॉफिट हो गया, दैन द कोस्ट प्राइस ऑफ दी
ਪੈਕ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾइस ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਸੀਪੀ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਪੈਕ ਤੇ ठीक है उसनू की हो गया 5% का फिर भी प्रॉफिट हो गया 5% का फिर भी की हो गया प्रॉफिट हो गया तो इसनू की लिख सकते आप 1/20 लिख सकते हैं ठीक है ये चीज़ तो तुहानू मैं दस्सण की बार बार लोड़ नहीं है तुहानू चीज़ पता होगी तो 20% का प्रॉफिट हो गया जो 20 रुपये की चीज़ लिया 1% का प्रॉफिट हो गया तो 1 रुपये की उसने बेची होगी 21 कितना सैलिंग प्राइस है ठीक है 20 कितना अपना कॉस्ट प्राइस है पर वो कहते सैलिंग प्राइस कितना उसने 42 रुपये की बेची है तो सैलिंग प्राइस कितना 42 की बेची है तो 42 कढ़ने वास्ते 21 42 बनाने वास्ते 2 गुणा करांगे तो कॉस्ट प्राइस भी आप 2 गुणा करके अपना 40 अपना कॉस्ट प्राइस आ जाऊगा अपना सी आंसर आ जाऊगा ठीक है 40 कितना आजूगा अपना आंसर आ जाऊगा क्योंकि जे आप 21 42 बनाना 2 गुणा करांगे तो कॉस्ट प्राइस 20 थी तो 20 भी 2 गुणा करके अपना 40 अपना कॉस्ट प्राइस को 40 अपना आंसर आ जाऊगा बहुत ईजी क्वेश्चन थी आगे बढ़ते हैं ओके बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹800 ए शॉपकीपर मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25% ठीक है जे कोई सैल करता शॉपकीपर सैल करता आर्टिकल 800 रुपए की तो उसको कितने परसेंट प्रॉफिट होता 25% होता है एट वट प्राइस शुड ही सैल दी आर्टिकल सो एज टू मेक ए लॉस ऑफ 25% कहना किन्ने दी वो बेचे कि उसनू 25% की हानि हो 25% का लॉस हो 800 रुपए की बेच के उसनू 25% का प्रॉफिट होता ठीक है किन्ने दी वो बेचे कि उसनू 25% का की हो जाए लॉस हो जाए पहला कि 25% का प्रॉफिट होंगे 25% का प्रॉफिट होंगे 25% की लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं जे वो 4 रुपए की चीज़ की 4 रुपए की चीज़ उसने की खरीदी थी तो 1 रुपये का उसने प्रॉफिट होया तो बेची किन्ने दी होगी ठीक है बेची किन्ने दी होगी 5 रुपये की बेची होगी 5 रुपये की बेची होगी 1 रुपये की खरीद के 1 रुपये का लाभ करके उसने 5 रुपये की बेचती ठीक है नीचे 4 तो 4 रुपये की खरीदी तो 5 रुपये की उसने बेचती दूजी बार वो कहते कि उसने 25% का की हो जाए लॉस हो जाए 25% का लॉस का की मतलब है 1/4 25% आप 1/4 लिख सकते हैं तो इस बार 4 रुपये की चीज़ खरीद के 1 रुपये के घाटे नाल बेची है तो 3 रुपये की बेची है तो 4 रुपये का सेलिंग कॉस्ट प्राइस थी 4 रुपये की खरीदी थी तो बेची किन्ने दी होगी 3 रुपये की तो सेलिंग प्राइस कितना जो अपना 3 आ जाऊगा ठीक है तो पहली क्वेश्चन थी जब उसने प्रॉफिट हो रहा था उसने किन्ने दी बेची थी 800 रुपये की बेची थी तो इतने किन्ना 5 है तो उसने किन्ने दी बेची थी 800 रुपये की बेची थी तो 5 ਨੂੰ 800 बनाने वास्ते आप 16 5 कितना होंगे 80 होंगे तो इसमें किन्ने थे 160 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे 5 ਨੂੰ आप 160 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को 800 आ जाऊगा आप कढ़ना की है आप कढ़ना दीगा कहते वट प्राइस शुड ही सैल के दूजी बार उसमें किन्नी सेल करनी चाहिए तो उरे 3 की करनी चाहिए तो 3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਰੇ 160 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 160 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 16 3 ਕਿੰਨਾ 48 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 480 ਆ ਜਾਊ ਤਾਂ 480 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਡੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਾਤਾ ਮੈਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਲੋਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ 4/5 5/4 ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਲੋਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਉਸ ਨੂੰ 3/4 ਲਿਖਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ सेलिंग प्राइस कितनी आ रही थी अपनी 800 आ रही थी तब 5 ਨੂੰ 800 बनाने वास्ते 160 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया उरे कितनी आ रही थी 3 आ रही थी सेलिंग अपनी सेलिंग प्राइस है इसनू आप 160 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके अपने 480 रुपये की बेच देंगे बहुत ईजी क्वेश्चन थी आगे बढ़ते हो गया अगला क्वेश्चन कहते ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ठीक है ए बी ਨੂੰ कोई आर्टिकल बेचदा तो उसने 20% तक की लाभ होंगे ठीक है ए की करता है ए जे कोस्ट प्राइस आप देखिए ए कोस्ट प्राइस जो ए ने जिन्हें भी खरीदी तो जिन्हें की बेची तो की हो गया बी का कोस्ट प्राइस हो गया ठीक है बी ने जिन्हें की खरीदी वो बी का कोस्ट प्राइस होगा ए ने जिन्हें की खरीद के बेची ए का की हो गया वो कोस्ट प्राइस हो गया कहने का मतलब जी 20% की ए ने बेची 20% की ए ने बेची ठीक है बी नू तो 20% का की उसने प्रॉफिट कमाया तो 20% आप लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं 1/5 1/5 लिख सकते हैं तो आप कह सकते हैं 5 ਤੇ 6 मतलब जो CPA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ 20% ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚਤੀ B ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਤਾਂ B ਨੇ ਜਦ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦੇਖੋ A ਨੇ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤਾਂ B ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ B 6 ਕੀ ਹੋਗਾ B ਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਗਾ B ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ A ਦਾ ਕੀ ਨਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ 5 A 5 ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਤੇ 6 ਦੀ ਵੇਚਤੀ ਤਾਂ B ने कितने की खरीदी 6 की ਕੀਤੀ ਤਾਂ B ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਗਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ फिर B ने की किया सोल्ड द सेम आर्टिकल टू C एट ए लॉस ऑफ 20% ठीक है जे B ने की करता उसਨੂੰ बेचता एट ए लॉस ऑफ 20% ठीक है ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ B ਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ B ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ C ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ C ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ C ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ठीक है ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 25% ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ लॉस हो गया 25% ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 1/4 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1/4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੇ 4 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਤੀ B ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਤੀ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਤੀ जे बी ने खरीदी थी 4 रुपए की तो उसने कितने की बेचती पर C ने तो की खरीदी है तो C ली की हो गया कोस्ट प्राइस हो गया तो B ली कोस्ट प्राइस 4 थी तो C ली कोस्ट प्राइस 3 हो गया ये चीज़ याद रख लियो उस तो बाद की कहते C सोल्ड द सेम आर्टिकल टू D एट ए प्रॉफिट ऑफ 40% ठीक है C की करता कि उसਨੂੰ बेच देना D ਨੂੰ एट ए प्रॉफिट ऑफ 40% ठीक है ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ C ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ
ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ डी ਦੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, डी ਦੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 40%। 40% ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 40% ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 40% ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4/10 2/5। ਠੀਕ ਹੈ, 2/5 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 40% ਆਪਣਾ 2/5 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, प्रॉफिट कमाया तो इसमें कभी लिख सकते हैं जुड़ जूगा। तो 5 की चीज़ खरीद के लिया जी, 2 की बेचती सीपी ने, 5 की खरीदी थी 2 की बेचती तो 7 रुपए की उसने बेचती 5 की, मतलब 7 रुपए की जब बेची है तब डी ने की खरीदी है तो 7 की हो गया डी की कोस्ट प्राइस हो गया, तो 6 की हो गया अपनी कोस्ट प्राइस हो गया कि सी का। ठीक है, ये चीज़ें तुम याद रखनिया ने। हुण आपां की करेंगे, देखो ये की आ रहा सी का जो कोस्ट प्राइस वो 6 आ रहा, इतने 6 नहीं आना चाहिए 5 आ रहा। ठीक है, सी का जो कोस्ट प्राइस आ रहा है 5 आ रहा है, तो सी का कोस्ट प्राइस उरे कितना 3 आ रहा है, रेशो गलत है। ठीक है, बी का कोस्ट प्राइस कितना 4 आ रहा है, बी का कोस्ट प्राइस 6 आ रहा है। तो रेशो बराबर करने वास्ते आप की करेंगे, जिवें आप पिछले क्वेश्चन च करिया सी, रेशो आप हुण बराबर करने वास्ते मैथड यूज करेंगे। जिवें आप कह सकते बी का कोस्ट प्राइस सी ते डी। ठीक है, सॉरी ए रह गया अपना 2 मिनट। ठीक है, हम आप ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी कर लेंगे। ए ते बी की रेशो कितनी 6 ते 5, बी ते सी की रेशो कितनी अपनी 4 3, सी ते डी की कितनी है 5 7। ठीक है, और आप भर देंगे 5 5 3 4 5 5, जो कटदा उन्होंने कट देने आप। ठीक है, और ए 5 आ, ए कि 5 दी, बी कि 6 और बी 6 आऊगा। ठीक है, तो उरे भी 6 और ये भी 6। ठीक है, बाकी सही है, बाकी ठीक है। हम आप करेंगे इसमें कट देंगे, ये सारी इक्वेशन किन्ने कट रही है अपनी 2 ते कट रही है, इतने आ जाएगा 2, ये कट के कितना जो अपना 3, ये भी कट के 3, ये कट के 3, जो कॉमन है उसमें कट देंगे। हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूनी 10 तो 5 50, और ये लिख देना मैं 50 रेशो 5 का बी बी जो आप 3 मल्टीप्लाई करते हैं कितना अपने को 60 रेशो 5 3 15 15 3 कितना 45 रेशो 3 9 9 7 63 63। ठीक है, इन्होंने की कहते डी ने किन्ने पेड की थी 252 पेड की थी, डी ने किन्ने पेड किया डी का डी ने किन्ने पेड की थी 252 पेड की थी। तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 नाल, 63 चौका कितना 252 होंगे, आप दसना कि ये दसना है, तो इसमें भी 4 नाल गुणा करेंगे तो कितना जो अपना 200। तो सी ने ए ने किन्ने पेड करे होंगे 200 पेड करे होंगे, 200 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 200 अपना आंसर आ जाएगा, बिल्कुल रेशो में आप कंपेयर करें और कुछ भी नहीं करें। हो गया अगला क्वेश्चन, कहते हैं ट्रेडर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 5%। ठीक है, अपनी ट्रेडर की है वो आर्टिकल बेच दिंदा 5% के लॉस से 5% की हानि से, बट वैन ही इनक्रीज दी सैलिंग प्राइस, जे वो जो बेच रहा थी पहला जो उसके 65 रुपए वध बेचता 65 रुपए ज़्यादा बेचता तो उसमें 3.33% का कितना गेन होंगे, 3.33% का उसमें कितना लाभ होंगे ऑन कोस्ट प्राइस। ठीक है, इफ ही सैल दी सेम आर्टिकल जो वो 936 रुपए का बेचे, दसो उसमें कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। ठीक है, जो वो की करे हम 936 का बेचता तो उसमें कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो पहला की होंगे 5% का की होंगे उसमें लॉस होंगे, 5% का लॉस होंगे जिन्ने की वो बेचता। तो 5% आप लिखना 1/20, जे 20 रुपए की उसने चीज़ खरीदी तो 1% का 1 रुपए का कि उसमें लॉस हो गया, 1 रुपए का उसमें लॉस हो गया। तो इसका मतलब की जे 20 रुपए की उसने खरीदी तो किन्ने की बेचूगा 19 रुपए की बेचूगा, तो ही उसमें की कह सकते आप लॉस होया। ठीक है, तो 19 की आ गया अपना सेलिंग प्राइस आएगा, 20 कितना आ गया अपना कोस्ट प्राइस आएगा। हूँ अगली बार की है उसमें 3.33% का की होंगे फायदा होंगे जो 65 रुपए ज़्यादा बेचता है। तो 3.33% आप की लिख सकते 1/30 लिख सकते हैं। कहने का मतलब जे 30 रुपए की चीज़ उसने खरीदी थी तो इस बार वो 31 रुपए की बेचूगा प्रॉफिट कमाने वास्ते। ठीक है, प्रॉफिट को कमाने वास्ते। तो देखो उरे कोस्ट प्राइस कितना 30 आ रहा है, उरे कोस्ट प्राइस कितना 20 आ रहा है। पहले आप रेशो बराबर कर लेंगे, 3 नाल ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 2 नाल ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 नाल मल्टीप्लाई करेंगे 19 30 कितना 57 होंगे, तो 20 30 कितना होंगे अपना 60 होंगे। इतने 31 दूना कितना होंगे 31 दूना 62 हो गया, 20 30 दूनी कितना हो गया 60 हो गया।
उरे कोस्ट प्राइस कितना आ गया अपना 60 है, उरे कोस्ट प्राइस कितना आ गया 60 है। कोस्ट प्राइस हम दोनों पासे बराबर हो गया। ये कहते पहला नालों दूजी बार 65 रुपए ज़्यादा बेची है। उरे पहला किन्ने दी बेची थी 57 रुपए की, ਹੁਣ किन्ने रुपए की बेची है 62 रुपए की। किन्ने का डिफरेंस है 5 रुपए का। वो कहते डिफरेंस तो 65 रुपए का आना चाहिए थी। तो 5 की वैल्यू किहदे बराबर होगी 65 की वैल्यू होगी। 1 की वैल्यू किहदे बराबर होगी अपनी 13 के बराबर होगी। ठीक है, 1 की वैल्यू किन्ने के बराबर होगी 30 की 13 के बराबर होगी। जे ਆਪਾਂ ਹੁਣ प्रॉफिट ਕੱਢਣਾ है, अगली बार प्रॉफिट ਕੱਢਣਾ है तो सब तो पहले अपन कोस्ट प्राइस पता होना चाहिए। कोस्ट प्राइस पता होना, कोस्ट प्राइस उरे कितना 60 है। तो एग्जैक्ट वैल्यू ਕੱਢਣ वास्ते 1 की वैल्यू कितनी है 13, 60 की वैल्यू कितनी होगी तो 13 गुणा कर देंगे। 13 छीके कितना होंगे अपना 78। तो 780 अपनी कह रही कोस्ट प्राइस, 780 अपनी कोस्ट प्राइस आ गई। तो सेलिंग प्राइस कितना अगली बार सेलिंग प्राइस अपन कह रहे सेलिंग प्राइस अपना है 936। तो प्रॉफिट ਕੱਢਣ वास्ते 937 सॉरी हाँ 936 936 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 780 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 156। ਠੀਕ ਹੈ, 156 ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾइस ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ अपॉन सीपी गुणा 100। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 156 ਦਾ, सीपी ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 780 ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 100। ठीक है, जीरो ना कट देंगे 78 के पढ़ 156 2 कट दिया तो अपने को 20% का जो प्रॉफिट हो जाएगा 20% अपना आंसर आएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन थी। तो 20% अपना प्रॉफिट आ जाएगा। जिसने समझ नहीं कर ना समझ नहीं आया वो स्लो करके उसमें देख सकता है तो आराम नाल देखे तो उसमें समझ आ जाएगा। कुछ ज़्यादा आप करें नहीं गा, बहुत ईजी तरीके जिवें आप पहला क्वेश्चन करे उस तरीके करेंगे तां करके मैं जल्दी कराता क्योंकि वही चीज़ सेम चीज़ आप जो तरीका और रिपीट करे तो तुम वीडियो रोक के आप जरूर सोल्व कर लोगे। बहुत ईजी क्वेश्चन थी। ओके, कहते कोस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। 20 आर्टिकल का जोड़ा कोस्ट प्राइस है वो एक्स आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, यही चीज़ क्वेश्चन ने कही थी, ये चीज़ मैं लिखती है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं की। ठीक है, इतों मैं कोस्ट प्राइस तो सैलिंग प्राइस की रेशो कट लेना वो आ जाएगा अपने को एक्स बटा बी। तो हूँ कहते इफ द प्रॉफिट इज 20% दैन द वैल्यू ऑफ एक्स। जो प्रॉफिट है वो एक्स की खरीदता है, जो 20 रुपये की बेच दिंदा एक्स की खरीदता है 20 रुपये की बेचता है तो उसमें 20% 25% का की होंगे प्रॉफिट होंगे। तो 25% का प्रॉफिट में आप लिख सकते 25% के प्रॉफिट लिख सकते आप 1/4 यही अपना प्रॉफिट है, 4 की अपना कोस्ट प्राइस है। तो सेल किन्ने की करूँगा 5 रुपये की, 4 रुपये की खरीदी थी 1 रुपये का लाभ होया तो 5 रुपये की बेचूगा। ठीक है, 5 रुपये की बेचूगा। इतने यही आ गई अपनी सेलिंग प्राइस तो कोस्ट प्राइस की रेशो आ गई। इतने अपनी जी सेलिंग प्राइस है 20 है, इतने सेलिंग प्राइस कितनी है 5 है। तो इनू भी आप 20 बनाने वास्ते कि मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 20 होंगे तो 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/16 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 16 क्योंकि कोस्ट प्राइस कितना आ रहा है 16 आ रहा है तो भी कोस्ट प्राइस कितना एक्स की तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 16। तो 16 अपना आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन थी। अगे बढ़ते हैं। ओके, एवरी ईयर बिफोर द फेस्टिवल सीजन कहते हर एक साल जब भी कोई फेस्टिवल सीजन आना होंगे ये शॉपकीपर की करता अपने प्राइस केड़ा करता इनक्रीज कर दिंदा। ठीक है, ओबवियस गल है सारे शॉपकीपर करते हैं, कोई त्यौहार आता दिवाली आती दशहरा आता तो शॉपकीपर की करते हैं अपने जो प्राइस ने थोड़े बता देंगे क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, यही शॉपकीपर भी करता कोई भी फेस्टिवल आता कोई त्यौहार आता तो अपने जो प्राइस ने वो करता बढ़ा दिंदा। ठीक है, किन्ने परसेंट 35% बढ़ा दिंदा। दैन दी इंट्रोड्यूस 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% 15%। तो फिर की करता वो 10 से 15% के 2 डिस्काउंट भी लगा देंगे भी 10% का सूँ डिस्काउंट मिलूगा 15% का डिस्काउंट मिलता जो कि आप दे देंगे। ठीक है, तो 10 से 15% का डिस्काउंट भी दे देंगे। प्राइस बढ़ाता तो डिस्काउंट देता। दैन दी परसेंटेज लॉस एंड परसेंटेज गेन तो आप दसना कि लॉस होया तो कितना होया जो गेन होया तो कितना होया यही आप दसना। सब तो पहला अपना टारगेट किया 35% का उसने की प्राइस बढ़ाता तो 35% आप लिख देना 35% आप लिख देना 35/100 लिख सकते हैं 35/100 लिख सकते हैं। तो 5/7 5 35 तो 5/20 तो आप कहते हैं 27/20। ठीक है, आह पहला वो 20 रुपये की करता थी चीज़ प्राइस थी 20 रुपये का प्राइस थी, हूँ उन्हें 7 रुपये बढ़ाता क्योंकि 35% बढ़ाता 7 रुपये बढ़ाता मतलब हूँ वो किन्ने का बेच रहा है 27 रुपये का बेच रहा है। पहले किन्ने का बेच रहा थी 20 का बेच रहा है। त्यौहार करके उसने 20 तो की करता 27 रुपये करता तो 7 रुपये उसने बढ़ाते। तो उस तो बाद वो की करता है 10 से 15% का की करता है डिस्काउंट दिंदा। 10% का डिस्काउंट आप कह सकते हैं 1/10 मतलब जो पहले 10 की चीज़ थी उन्होंने 9 की बेचता। तो 15% का डिस्काउंट का मतलब कि 15% का मतलब होंगे अपने को कितना आजूगा यह आजूगा अपने को 2 15% मतलब 15/100 5 पढ़ के 3 5 पढ़ के कटांगे 20
ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ 17 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਤਲਬ 15% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, 20 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਤਲਬ 17। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਜਾਂ ਲੋਸ ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ CP ਗੁਣਾ 100 ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਰਿਆ देखो 27 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਧਾ ਕੇ 27 ਦਾ ਰੇਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸने 9/10 ਤੇ 17/20 ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸਨੇ 20 ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਵੀ CP ਗੁਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ 100 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬਸ ਆਪਾਂ 20 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ 27 ਗੁਣਾ 9 ਗੁਣਾ 17। ਠੀਕ ਹੈ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟਿਆ 2 ਤੇ ਕੱਟ ਜੂਗਾ, ਤੇ 2 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 40 ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 40 ਗੁਣਾ ਮਾਈਨਸ 5 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 100। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, 24 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 24 ਨਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 27 ਨਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 27 ਨਇਆ ਹੁੰਦਾ 243 ਉਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 243 ਗੁਣਾ 17 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 40 ਮਾਈਨਸ 100। 243 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 17 ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4131। ਠੀਕ ਹੈ 4131 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 40 ਮਾਈਨਸ 100। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ 4 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, 4 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ 10 ਆ ਜਾਊਗਾ, 4 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟਿਆ 4 1 4 0 4 4 ਤੇ 12 1 4 2 8। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਨੀਚੇ 10 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 103.2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 100 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 103.2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3.2% ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਲੋਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ 1.2 ਦਾ ਗੇਨ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਗੇਨ ਆ ਜਾਊਗਾ C ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ 27 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 27 ਤੇ ਉਸਨੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ 2 ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤੇ 9/10 ਤੇ 17/10। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਕੋਸਟ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਣਾ 100 ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ C। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हो गया अगला क्वेश्चन, कहने द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडिंग द सेल टैक्स इज ₹616। ठीक है ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਿੰਗ ਟੈਕਸ ਜੋੜ ਕੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 616 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਟ ਆਫ ए ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ 10% ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ हैज मेड ए प्रॉफिट ऑफ 12%। ठीक है सेल टैक्स मतलब 12% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ ਉਸਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ अपना शॉपकीपर थी उसने बेचने तो बाद 12% का प्रॉफिट कमाया, जिसके 10% का उसको टैक्स लग गया। दैन दी कोस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है जो अपन टैक्स लगता कितने लगता सेलिंग प्राइस से लगता है। ठीक है तो जे आप करिए 10% है 10% का की लिख सकते हैं आप 1/10 लिख सकते हैं। जे 10 रुपए की चीज़ वो बेच रहा थी तो 1 रुपए का उसको की लग गया, 1 रुपए का की लग गया उसको टैक्स लग गया, तो मतलब 10 रुपए की चीज़ थी वो 11 रुपए की बन गई सेल टैक्स जोड़ के। पर सेल टैक्स कितना जुड़िया 616 जुड़िया, तो 11 ਨੂੰ 616 ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 11 5 56 ਨਾਲ 11 5 55 ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 6 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ 56 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 560 ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਆ 560 ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ 560 ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਿਆ 616 ਦਾ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਜਦ ਉਸਨੇ 56 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਜਦ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ, ਕੁਛ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਉਸਨੇ ਪਾਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂ ਮਕਸਦ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ 12% ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ 12% ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 12/100। ਠੀਕ ਹੈ 6 ਦੂਣੀ 12 नहीं 6 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟਿਆ 2 ਗੁਣਾ 6 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 5 ਫਿਰ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਆਪਾਂ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟਿਆ 3 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 25। ठीक है इसका मतलब की है जो 25 रुपए की उसने चीज़ खरीदी थी उसने कितने की बेची 27 रुपए की बेची, तो उरे 560 कढ़ने का मकसद ये थी कि उरे आप 527 की वैल्यू अपन कितने की आई है 560 आई है। ठीक है तब 27 ਨੂੰ 560 करने बाद कितना मल्टीप्लाई करेंगे 20 ਨਾਲ गुणा करेंगे तो अपन को कितना ही 560 क्योंकि ये की अपना कोस्ट प्राइस है सॉरी ये की अपना सेलिंग प्राइस है। 27 कितना अपना सेलिंग प्राइस है उरे सेलिंग प्राइस कितना 560 दिया तो 27 ਨੂੰ 560 बनाने वास्ते 20 ਨਾਲ गुणा करेंगे तो इसमें भी 20 ਨਾਲ गुणा करेंगे आप
तो 25 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ तो कितना आ जाएगा 500। तो 500 अपना की है कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा अपना 500 आ जाएगा। आगे बढ़ना अगला क्वेश्चन कहते इफ गुड्स बी परचेज फॉर ₹450, कोई चीज़ खरीदी जाती है 450 रुपए की, उस तो बाद तीजा हिस्सा 450 रुपए का जो तीजा हिस्सा वो बेचा जाता है 10% के हानि ते 10% के लॉस से, तो जो बाकी हिस्सा है वो कुछ परसेंट के गेन से बेचा जाता है। अपन पता किन्ने परसेंट के, पर कुछ परसेंट के गेन से बेचा जाता है। तो जी होल ट्रांजैक्शन है उसते उसमें 20% का फायदा होंगे, 20% का की होंगे लाभ होंगे जब सारा बेचता। आप दसना कि जो उसने दूजा पार्ट से किन्ने परसेंट के गेन से बेचा। देखो 450 है, 450 का पहला तीजा हिस्सा देखते हैं। 450 का तीजा हिस्सा 3, ठीक है, 150 आ गया। तो जो 150 वाला हिस्सा है वो उसने 10% के लॉस थे, मतलब 9/10 आ जाऊगा, ठीक है यार। हूँ ये तो याद रख लियो 10% की 1/10, 1% का लॉस होया तो 9/10, ठीक है 9/10, ठीक है। ये चीज़ तुहानूं पता होनी चाहिए। 150 किन्ने दे बेचता 9/10 से, प्लस जो बाकी है 450 जो मैं 150 माइनस करता कितना जो 300, जो 300 है वो अपन पता पर कुछ परसेंटेज से उसने बेचता। तो सारी चीज़ से मतलब पूरी की पूरी 450 की चीज़ से उसने किन्ने का फायदा हो गया 20% का गेन होया। 20% में आप लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, 5 का गेन मतलब 6/5, ठीक है। 5 के एक जोड़ता तो इसमें लिख सकते 6/5। हूँ आप करना बस सोल्व करना, हम इस सोल्व करते हैं तो 0 ਨਾਲ 0 कट जूगी, 15 9 135, इस 0 कट जाएंगे, ये आ जाएगा अपने को 3x, ठीक है। इसमें आप सोल्व कर लेने, ये आ जाएगा अपना 90, ठीक है। तो 9 × 54 ये आ जाएगा 540, तो 3x 540 माइनस आप प्लस दे आगे माइनस 135, ठीक है। 3x 540 के विचों जो 135 माइनस कर दें तो आ जाएगा अपने को 405, तो 3x सॉरी x इज इक्वल टू 405 डिवाइड बाय 3 से कट के आ जाऊगा अपने को कितना आ जाएगा 135। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 135 आ गई। तो 135% का की कर रहा थी वो इंक्रीज कर रहा थी, मतलब 135% तो बेच रहा थी, 135% से बेच रहा थी। तो इंक्रीज कितने का कर रहा थी 100 + 35, तो 35% का इंक्रीज कर रहा थी। तो 35 अपना आंसर आ जाएगा, ए अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके कहते हैं डीलर सोल्ड 2 ऑफ हैज कैटल फॉर ₹500 ईच, ठीक है। और मैं पहला क्वेश्चन कराता सेम ही है, ये दोनों जी कैटल ने वो 500 रुपये बेचे जाते हैं। 10% का ही उसको की होंगे, एक कैटल से लॉस होंगे, एक कैटल से उसमें 10% का की होंगे लाभ होंगे। आप दसना सारी ट्रांजैक्शन से पूरी कंप्लीट ट्रांजैक्शन किसी ने कितना प्रॉफिट तो कितना लॉस होया। सेम क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाया थी कि मैं की x² डिवाइड बाय 100, जो टोटल आप टोटल प्रॉफिट या लॉस कढ़ना होंगे तो आप करते होंगे x² बाय 100। एक्स की वैल्यू कितनी अपने को 10% है, क्योंकि 10% का लॉस होंगे, पहली कैटल से 10% की हानि होंगी है। तो 10 की स्क्वायर डिवाइड बाय 100, तो 100/100 तो हमेशा एक लॉस होंगे। मैं तुम्हें दसा हमेशा की होंगे लॉस होंगे, 1% का की हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो बी अपना आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन थी, ठीक है। मैं हूँ तेज करवा रहा क्योंकि पहला थोड़ा करवाते हूँ आइडिया जो थोड़ा लग गया होगा, बस एक हिंट देने वास्ते थोड़ा करवा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते ए मैन बाउट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 5%, ठीक है। एक आदमी की करता है, एक आर्टिकल खरीदा है तो उसको 5% के गेन से बेचता है। मान लो कोई आर्टिकल 100% है, मतलब 100% वो आर्टिकल है तो उसको गेन करके किन्ने की बेचता है 100% उसका कॉस्ट प्राइस थी, तो किन्ने की बेचती उसने सेलिंग प्राइस 5% का जो लाभ होया 105 की बेची होगी, ठीक है। इफ ही हैड बाउट इट एट 5% लेस, जो 100% की जगह तो 95% की चीज़ है, मतलब 5% लेस से खरीदा, दैन ही सोल्ड एट 1% लेस, ठीक है, 1 रुपये लेस। तो 105% की जगह से हूँ वो किन्ने की बेचूगा, जो पहले नालों बेचे तो 1 रुपये घट की बेचूगा, 1 रुपये घट की बेचूगा। जो पहले नालों 5% सस्ती खरीदा तो 1% घट की उसको बेचूगा। कहते ही वुड हैव मेड प्रॉफिट ऑफ 10%, तो इस पर भी उसने 10% का की होया फायदा उठा लिया। तो 95 का जो आप 10% देखिए, 95 का 10% देखिए होंगे 9.5 होंगे। तो हूँ आप करेंगे 95 रुपये के 9.5 रुपये ज़्यादा की बेची है, तो इस 9.5 ऐड कर देंगे तो अपने को 104.5 आ जाएगा, ठीक है। 104.5 इसका मतलब यह है कि 95% की चीज़ उसने 104 रुपये 5% की बेची है। तो उरे तो 105 1% घट बिकी है, पर उरे किन्ने का फर्क है 0.5% का। जे आप परसेंटेज देखिए तो 0.5% का, जे रुपीज से देखिए तो 1, तो 0.5% की बराबर अपना 1 रुपये दे, ठीक है। 1% की बराबर हो जाएगा अपना 2 रुपये दे। आप कटना है CP कटना सीगा, आप करना CP कटना, CP अपना 100 है तो उरे 100 ना मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 100 ना मल्टीप्लाई करेंगे तो CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 200 अपना आंसर आ जाएगा।
ਤਾਂ 200 ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 5% ਘੱਟ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ 95 ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 5% ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ 105% ਦੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 1 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਸ ਐਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ 1 ਰੁਪਏ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ 95 ਤੇ ਉਸਨੇ 10% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਕੇ ਉਸਨੇ 104.5% ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ % ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਧਾ % ਦਾ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ, 1 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਵੇਚਣਾ, ਤਾਂ ਅੱਧਾ % ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ, 1% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਗਾ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ, 100% ਮਤਲਬ ਸੀਪੀ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, ਸੀਪੀ 100% ਦੀ, 100% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ 200 ਦੇ, ਤਾਂ 200 ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਓਕੇ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਿਓ, ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ठीक है, ये क्वेश्चन तुसी आप करना है, थोड़े वास्ते होमवर्क है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसमें जो भी थोड़ा आंसर आता कमेंट बॉक्स लिखो, बहुत होनेस्ट नहीं करना, कोई नहीं सर्च करके आंसर लिखना, ईमानदार नाल बह के करो। जो टाइम लगता 15-20 मिनट लगते हैं, ये थोनू देखो जे कोई क्वेश्चन दे, मान लो तुसी एक क्वेश्चन कोई औखा जिहा क्वेश्चन एक क्वेश्चन करिया, तुसी 4 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ क्वेश्चन करिया, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਜੂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਔਖਾ ਕੁਐਸਚਨ 4 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ 20-25 ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਔਖਾ 4 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਉਂਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ। ਓਕੇ, ਉਰੇ ਤੱਕ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ 99 ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ 99 ਇਕੱਠਾ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਪੀਡੀਐਫ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ 99 ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸੁਰੱਖਿਤ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।